What a lovely morning this is. Today we all have gathered to celebrate the ascents of motherhood. Let me begin by introducing myself. My name is Rupika Pandey and I am a certified health and nutrition coach. I have had the privilege of receiving my certification from Mandira Bedi, who herself is a leading fitness icon of the nation today. And I have come here with a mission. My mission is to transform the health of at least 100 mothers in the year 2023. And I need your support in this. What better occasion than Mother's Day to remind the mothers that how important it is that they take care of themselves. It is said that the hand that rocks the cradle rules the world, and this statement cannot be overstated. The power and impact that a mother has on her child is immeasurable. Not only her child, a mother, since she has impact on her child, that child grows up to become a citizen, and citizens collectively form a nation. So indirectly, mothers, you have the power to shape the entire nation. The destiny of the nation is in your hands. And yet, how much weightage, how much importance do we mothers give to the health of our own selves? Have you ever asked yourself this question? संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात कि माता जिसने हमें जन्म दिया है और जन्मभूमि जिस देश में हम पैदा हुए हैं वो स्वर्ग से भी महान है। और महान क्यों है? क्योंकि जिस दिन आप मां बनती हैं, यू लीव योर सेल्फ बिहाइंड, आप खुद को पीछे छोड़ देती हैं और जिस शिशु को आपने जन्म दिया है वही आपके जीवन का सेंटर बन जाता है। आपकी हर सांस, आपका हर कदम, आपका हर एक्शन उस बच्चे के लिए हो जाता है। और इतनी महानता भगवान ने एक स्त्री को ही दी है। बट why I have come here today? Because the state of affairs of the health of the mother of our nation is not very good. आज बहुत जरूरत है इस बात की अवेयरनेस क्रिएट करने की कि लेडीज, मदर्स, उनकी हेल्थ बहुत पीछे छूट रही है। You will be shocked to know that जहां हेल्थ की बात आती है, हमारे कंट्री में nearly half of the urban women, they are obese. They have put on weight. This was not the scene a few years ago. Not only this, 1 in every 5 women before she turns 45, she has at least one chronic health condition. And 42 million Indian ladies today suffer from hypothyroidism. 1 in 10 Indian women is having high blood pressure. 1 in 5 Indian women is suffering from PCOS. Did you guys know all this? That the affairs are so shocking. 1 in 6 Indian women, they suffer from migraine headaches. आज सिर दर्द होना इतनी आम बात हो गई है कि हम उसको ऐसे ही नॉर्मल ले लेते कि तो चलता है। So much suffering for the woman of today, for the mother of today. See, I have come here just to create this awareness that if you truly want to celebrate Mother's Day, you must gift a mother with good health. Let her be healthy. Only and truly a mother can be happy when she has good health. आज स्टेट ऑफ अफेयर्स इतने खराब है कि जो हेल्थ की डेफिनेशन है, the WHO defines health as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. सिर्फ बीमारी ना हो ना हेल्थ नहीं है,
क्या आप फिजिकली, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली, socially, are you feeling that you are well? Let me ask you this question. How many of you feel that you are extremely healthy? You are enjoying well-being? Great, ma'am. You have to because you're the principal. Great, ma'am. Great. See, you can see around. जो हेल्थ की सही परिभाषा है, जो एक खुशनुमा स्टेट है, जहां हम ये एहसास करते हैं कि हाँ सब कुछ अच्छा है हमारे साथ और हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति को झेल सकते हैं, वो हिम्मत, वो वेलबींग क्या आज हमारे पास है? हमारे कंट्री के इतने सैड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स देखकर आई डाउट दैट। आप जानते हैं डिजीजेस दो तरह के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट डिजीजेस वो होते हैं कि जैसे सर्दी जुकाम बुखार आ गया, दे कम सडनली एंड दे गो फास्ट एंड फॉर दैट देयर आर डॉक्टर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विजिट अ डॉक्टर। इफ यू हैव फीवर, if you have some infection, the doctor will cure you. But हमारे कंट्री में आज के टाइम में जिस तरह के डिजीजेस ने सबको चपेट में लिया है, these are not acute diseases, these are chronic diseases. Chronic diseases come from lifestyle, from the way you behave, you eat, you sleep, what is your social circle, what is your mindset. All these factors affect your well-being. और इन सब फैक्टर्स का सही ना होना क्रॉनिक डिजीजेस को जन्म देता है। क्रॉनिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, आर्थराइटिस, द लिस्ट इज लॉन्ग। ये पैदा होते हैं एक दिन में नहीं, कई सालों के गलत खान पान, गलत सोच, गलत एनवायरनमेंट और सही नॉलेज ना होने की वजह से। आज क्योंकि इतने सभी लोग बीमार हैं, हमने ये मान लिया है कि बीमारी तो नॉर्मल है। जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज हैविंग थायराइड, हाउ मेनी ऑफ यू आर टेकिंग रेगुलर पिल्स ऑफ थायराइड? जस्ट लुक अराउंड, जस्ट लुक अराउंड। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पीसीओएस। यू नो, लेडीज जब 30 क्रॉस कर लेती हैं, अप टिल द एज जस्ट बिफोर 60, वो जो टाइम होता है 30 to 60, वो टाइम इतना क्रूशियल होता है बिकॉज यू पास्ट योर प्राइम ईयर्स एंड यू स्टिल नॉट एंटर्ड, यू स्टिल नॉट बिकम अ सीनियर सिटीजन, बट स्टिल वो जो बीच का टाइम होता है, इस टाइम में लेडीज अपने आप को सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करती हैं, मदर्स खास करके। यू नो, माई मोटिव ऑफ कमिंग हियर इज टू मेक दिस माइंडसेट शिफ्ट। जब तक आप अपनी हेल्थ को यहां सेंटर में नहीं रखेंगे ना अपनी लाइफ के, तब तक आप जिस फैमिली के लिए, जिस बच्चे के लिए इतनी मेहनत कर रही है, वो मेहनत पूरी तरह कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज यू वोंट बी एंजॉयिंग योर वेरी एग्जिस्टेंस। पर आज सोच के देखिए, आज हमारी सोसाइटी में ये तो प्रॉब्लम है। हर दूसरी तीसरी महिला सर दर्द, इंडाइजेशन, माइग्रेन, थायराइड, हाइपरटेंशन, इन सब से ग्रस्त है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास डॉक्टर्स हैं हु आर एबल टू हेल्प अस इन एक्यूट डिजीजेस, और वो क्रॉनिक डिजीजेस में भी हमें सिम्टम्स मैनेज करने के लिए हेल्प करते हैं। बट क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके, सही नॉलेज पाकर, अपने आप पे हर रोज काम कर कर अपनी सेहत को नंबर 1 रखें? उस बच्चे के लिए ही सोचिए जिसके लिए आप सब कुछ कर रही हैं। एज अ मदर, आप सब लोग यहाँ आए हैं परफॉर्म करने के लिए। मैक्सिमम लोग खुद से पूछिए, आप अपने लिए नहीं आए हैं, आप इसीलिए आए हैं कि हमारे बच्चे को अच्छा लगेगा। राइट राइट, ये है इंडियन मदर। लेकिन सब कुछ कीजिए अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए, लेकिन अपनी सेहत को बचा के रखिए। सोचिए, आज से 20 साल बाद, आज से 20 साल बाद अगर आप किसी क्रॉनिक एलिमेंट की चपेट में आ गए तो यू वोंट बी एबल टू एंजॉय योर लाइफ। द सॉल्यूशन, प्रॉब्लम हो गई, अब सॉल्यूशन। थैंकफुली
have the option of something called a health coach. हेल्थ कोच का कॉन्सेप्ट इंडिया में थोड़ा नया है, बट इट इज वेरी पॉपुलर इन यूएस, ऐसा कंट्री जो इतनी सारी क्रॉनिक डिजीज से ऑलरेडी गुजर रहा है. एनीवन हैज एन आइडिया हु इज एग्जैक्टली हेल्थ कोच? किसी ने कभी सुना है? Are you able to hear me? Anyone has heard of the term health coach? Yeah. See, it is so unpopular in our country. हमें डॉक्टर्स पता है, वो सेवा कर रहे हैं, बट जो आपका सफर अपने घर से लेकर डॉक्टर तक जाता है ना, उसमें 10-20 साल लगते हैं. एंड आपकी बॉडी आपको देती है, आपकी बॉडी आपको हेडेक देती है, इंडाइजेशन देती है, स्लीप इश्यूज देती है. इट इज ट्राइंग टू टेल यू दैट लिसन, यू नीड टू डू समथिंग अबाउट योर हेल्थ. और हम क्या करते हैं? सिर दर्द हो रहा है तो गोली खा के सो जाते हैं, इंडाइजेशन होता है तो वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आते हैं, वो ले लेते हैं. जरा गहराई से सोचिए, आज ये मौका मिला है, इतनी सारी मदर्स इकट्ठी हुई हैं, आपस में बात कीजिए, पूछिए एक दूसरे को, क्या सब यही नहीं कर रहे? कुछ भी हुआ गोली लेने काम बन गया. बट दिस इज क्विक फिक्स. ये गोलियां आपके सिम्टम्स में आपको रिलीफ देंगी, आपको इंस्टेंट आराम मिल जाएगा, पर जो बॉडी ने सिग्नल दिया ना आपको, आपने उसको शट ऑफ कर दिया. ये सॉल्यूशन नहीं है, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है. अगर आप वाकई में अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं, और देनी भी चाहिए, क्योंकि रिमेंबर द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, सो दैट हैंड शुड बी स्ट्रांग इनफ. वी शुड बी एम्पावर्ड इनफ विद आवर ओन हेल्थ, ताकि हम अपने बच्चों को, इस देश को अपना 100% दे सकें. सॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो आज एक कॉन्सेप्ट है हेल्थ कोच का. लाइक आई एम अ ट्रेन्ड हेल्थ कोच. हेल्थ कोच कौन होता है? जैसे स्पोर्ट्स के कोचेज होते हैं. स्पोर्ट्स के कोचेज क्या करते हैं? एक एथलीट को उसका एक टारगेट होता है, दैट आई वांट टू रन सो मेनी माइल्स इन दिस मच टाइम. आज ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको अपनी हेल्थ का गोल बनाना है, I want to be free of my headaches forever. This is a health goal, example of a health goal. तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? For that we have health coaches. We won't think in terms of disease. We will think in terms of health. जब आपको अपनी health A1 करनी है, तो you have health coach. यही awareness create करने का मेरा purpose है, कि in case you want to take care of your health, आप अपनी हेल्थ को नंबर 1 करना चाहते हैं, अपनी जितनी भी सिम्टम्स बॉडी आपको इस स्टेज पे दे रही है ना, उनको खत्म करना चाहते हैं, अपने वेलबींग की तरफ जाना चाहते हैं, जो ट्रू डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है उसे अनुभव करना चाहते हैं, तो एक हेल्थ कोच की मदद लीजिए. क्योंकि एक हेल्थ कोच आपके सिम्टम्स को क्विक फिक्स करके नहीं देगा. हेल्थ कोच, लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, आई वर्क ऑन द रूट ऑफ द प्रॉब्लम. मैं 1-to-1 सेटिंग में काम करती हूँ. I understand the individual, I understand his personality, his problems, और उन सब को देखकर, there are 6 areas which we need to see. What you're eating, how you're eating, your sleep, your exercise, your activity, your social life, and your sleep. ये सब आपकी हेल्थ पे असर डालते हैं, और एक हेल्थ कोच का काम है इन 6 एरियाज को बैलेंस करना. जब तक आप किसी एक भी एरिया में, if you're not strong enough, आप खाना अच्छा खा रहे हैं बट आपकी स्लीप पुअर है, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन आपका स्ट्रेस हाई है, आप वेलबींग एंजॉय नहीं कर पाएंगे. एक हेल्थ कोच एग्जैक्टली यही काम करके देता है. वो आपको अच्छे से समझता है एज अ ह्यूमन बीइंग. सी, ईच ऑफ अस इज डिफरेंट. कोई 2 इंसान सेम नहीं है. तो हर इंसान को एक इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए. कोई ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो उसको कंप्लीटली समझे उन सभी एरियाज में, और ये आइडेंटिफाई करे कि उसकी प्रॉब्लम्स की रूट किधर है, जड़ किधर है. कितने लोग मानते हैं कि जड़ पे ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ सिम्टम्स पे नहीं. हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कोई हमारी प्रॉब्लम की जड़ समझ ले, हमें 10 मिनट सुन ले, हमें तकलीफ क्या है हम दिल खोल के बता दें, हमें ये प्रॉब्लम है, कोई समझ पाए, कोई ऐसा एक्सपर्ट हो.
वो एक्सपर्ट एक हेल्थ कोच है, हमें ट्रेनिंग मिली होती है न्यूट्रिशन में, एक्सरसाइज, जितने भी 6 एरियाज मैंने आपको बताए हैं उन सभी एरियाज में. प्लस वी आर ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड योर माइंडसेट. वी आर ट्रेन्ड टू शिफ्ट योर हैबिट्स. मैक्सिमम लोगों को पता है क्या करना है, लेकिन आदत से हम मजबूर होते हैं कि नहीं? वो आदत कैसे बदलनी? आदत बदलने की साइंस होती है. अगर हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ेंगे नहीं, अच्छी आदतों को अपनाएंगे नहीं, तो हम आज जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे और चीजें और खराब होंगी. You know, I helped a client, one of my client, वो डिप्रेस्ड थी, उन्हें रात में नींद नहीं आती थी. She was getting overweight, उन्हें माइग्रेन रहता था, उनकी लेग्स में बहुत पेन होती थी और वो डॉक्टर्स के चक्कर काट काट के थक चुकी थी. उनका महीने का डॉक्टर्स का खर्चा ही 15,000 था. बट डॉक्टर आपको तभी हेल्प कर पाएगा जब आप ये समझेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स की रूट किधर है. सी बॉडी में कुछ भी अलग अलग ऑपरेट नहीं करता है. अगर सिर में दर्द है तो वो एक अलग से प्रॉब्लम नहीं है. इट इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. बॉडी को एज अ होल देखना पड़ता है और सिर्फ बॉडी को ही नहीं, हमारा माइंड, हमारे विचार डायरेक्टली हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं. कई बार इंसान अपनी किसी सोच में अटका होता है, एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में, जो कि डिजीज क्रिएट कर रहा होता है. अब उस नेगेटिव पैटर्न को कौन पकड़ेगा? और पकड़ भी लिया तो उसको ब्रेक कैसे करेगा? सी हेल्थ कोचेस हैव सच एन इम्पोर्टेंट एंड वाइटल रोल टू प्ले. आई मस्ट से आज के टाइम में डॉक्टर्स पे लोड थोड़ा कम कीजिए, अपने आप को क्रॉनिक बीमारियों से बचाइए. ये सब अवॉइडेबल हैं. जो आप पिल्स लेते हैं उन्हें आप छोड़ सकते हैं. अपनी बॉडी को समझिए. एक एक्सपर्ट के पास आकर वेलबींग को एंजॉय करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है. जब जड़ पे काम करते हैं ना, फूल अपने आप खिलते हैं. सो आई वोंट टेक मच टाइम since you all have been waiting for so long. In short, I have come here as a health coach और मेरा मिशन जैसे कि मैंने बताया, I want to transform the health of 100 mothers in this year. अगर आप में ऐसे लोग हैं जो अपनी दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं, जो जिंदगी को जीना चाहते हैं, खुशी से पूरे वेलबींग को एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनके पास एक हेल्थ कोच की ऑप्शन है. I am there and I want to tell you that today on this occasion of Mother's Day, I want to gift 1 month of my coaching, which includes 4 1-to-1 sessions, जो कि आपके घर के कंफर्ट से होंगे. वो एक ऑनलाइन मीडियम से होता है. टाइम आपका, घर आपका, लेकिन इरादा आपका होना चाहिए कि मुझे ठीक होना है, मुझे दवाई छोड़नी है, मुझे वेलबींग एंजॉय करना है. क्योंकि अगर आप ट्रूली अपनी फैमिली को कुछ देना चाहते हैं ना, तो अपनी सेहत दे दीजिए. कल को जब आप थोड़े और बड़े होंगे तो आप अपने परिवार पे बोझ नहीं होने चाहिए. इतना सेल्फ रिस्पेक्ट आप में होना चाहिए. उसके लिए आपको अपनी हेल्थ को आज बरकरार करना है, आज ही वो सारी मरम्मत करनी है. और उसके लिए आई एम देयर. किन्हीं 5 लोगों को आई लाइक टू ऑफर माई फ्री 1 month ऑफ कोचिंग. 1 महीने में लोगों में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है ना, जब आप एक्सपीरियंस करेंगे आप खुद ही जानेंगे. सो माई नेम इज रूपिका पांडे. इफ यू वॉन्ट यू कैन कम टू मी, बट आई विल बी एबल टू टेक ओनली 5 people, बिकॉज मैं इतना टाइम इन्वेस्ट करती हूँ ना एक में, कि मेरे लिए थोड़े ही लोग लेना प्रैक्टिकल हो पाता है. सो प्लीज मदर्स, यू आर मोस्ट वेलकम. अपनी हेल्थ को प्लीज संभाल के रखिए, बचा के रखिए, वेलबींग एंजॉय कीजिए. क्योंकि मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे. अ मदर विल बी ट्रूली हैप्पी ओनली इफ शी इज ट्रूली हेल्दी. अपने आप को अपनी प्रायोरिटी बनाइए.
अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाइए एंड सी द मैजिक। गाइस, आई शुड से कि आपको मालूम भी नहीं है कि आपने अपनी लाइफ सिर्फ हाफ एंजॉय कर रहे हो। इमेजिन आप पूरे सेहतमंद हो जाओ तो आप कितना कुछ और कर पाओगे, जो सिर दर्द के चलते, इसके उसके चलते आप नहीं कर पाते। सो डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, प्लीज गेट इन टच विद मी, आई एम स्टिल हियर फॉर सम टाइम and please make the most of it. It is truly my mission and vision to see healthy mothers in our country. The future of our country is in your hands, mothers. Please take care. Thank you.